Yes, students, a very good morning and welcome to today's class. I hope you all are doing great and you all are good at your places. And you know that we are going to start with a new chapter. That is chapter number 9, The Bond of Love. Now, this is a very fascinating account of an orphaned sloth bear and the sloth bear that was rescued by the author. Now, when comes the bond of love, that is a love and friendship. So, you know, this is a story about the love and friendship between human beings and wild animals. Human being और wild animal के बीच का जो love and friendship का जो bond है, this is known as the bond of love. Okay, so यहाँ पे क्या है? We can see that before we read वाले part पे अगर हम जाते हैं तो we'll see that can there be love and friendship between human beings and wild animals. Now let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. Now, क्या love और friendship हो सकता है between human beings and wild animals? Now, एक fascinating account पढ़ेंगे of an orphaned sloth bear and that was rescued by the author. Now, see, sloth bear inhabit forested areas including the tropical rainforest of India and the grasslands at the lower elevation. Sloth bears have very shaggy hairs and long muzzles. Using their claws to dig, they can use their tips to form a tube, which can go deep into the ground and into the hard to reach areas like dead trees for their food. The main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. Now देखो, you all know. Now before reading about the sloth bear, पहले आपको sloth bear के बारे में कुछ पता होना चाहिए. तो do you know that sloth bear it inhabits the forested areas including the tropical rainforest of India and grasslands at the lower elevation. Sloth bear के बहुत shaggy hairs होते हैं, long muzzles होती है. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground and into hard to reach areas like dead trees for their food. The main food क्या है? Termites. You can hear them suck up their food from several feet away. Now I will begin with Bruno. Now ये story शुरू हो रही है. Now the author is saying that I'll begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore and people were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. Now, वो कह रहे हैं that I will begin. Yes. So ये कह रहे हैं that I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear, and I got him for her by accident. और मैं उन्हें for by accident I just got him for her. 2 years ago वो कह रहे हैं that हम लोग पास कर रहे थे through the sugarcane field near Mysore and people were driving away the wild pigs. And from the fields by shooting at them, कुछ शॉट हो गए, कुछ एस्केप हो गए, and we thought that everything was over when suddenly a black sloth bear आया वहां से, came out panting in the hot sun. And now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. And वो कह रहे हैं now I will not shoot a sloth bear. अब मैं किसी भी sloth bear को I am not going to shoot that sloth bear for no good reasons for that poor beast बेचारा. And but one of my companion, उसको कोई फीलिंग नहीं थी उनके बारे में. उन्होंने बोला यार जब हम सिर्फ यहाँ पे पिग्स को शूट करने के लिए आए हैं, देन व्हाई आर वी शूटिंग हियर? हम पिग्स को हमें भगाना था यहाँ से. ये स्लॉथ बियर बेचारे ने क्या किया है? मैंने विदाउट एनी रीजन मैं स्लॉथ बियर को शूट नहीं करने वाला, बट मेरे फ्रेंड के पास में ऐसी फीलिंग्स नहीं थी एंड प्रॉम्प्टली ही शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. एज वी वॉच्ड, हम लोग ये सब चीजें देख रहे थे, द फॉलन एनिमल्स, वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी. जैसे ही वो एनिमल स्लॉथ बियर, जैसे ही उसको बुलेट लगी एंड द एनिमल फेल डाउन, वी ऑल वर सरप्राइज्ड टू सी, क्या देख के, दैट ब्लैक फर ऑन इट्स बैक,
वो जो ब्लैक फर थी उनकी बैक पे, इट मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, वो वहां से मूव की एंड इट जस्ट लेफ्ट दैट प्रोस्ट्रेट बॉडी. प्रोस्ट्रेट बॉडी मींस लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स. वो स्लॉथ बियर जब उसको गोली लगी तो बिल्कुल मुंह के बल उल्टा जमीन पे गिर गया. तो उन्होंने बोला आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट, तो उसको जब मैंने देखा तो उसके ऊपर से एक ब्लैक फर हमें मूव करता हुआ दिखा. फिर हमने देखा ये क्या मूव कर रहा है. देन वी सॉ इट वाज अ बेबी बियर दैट had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. उन्होंने बोला तब हमने गौर से देखा एंड वी फाइंड आउट कि ये तो एक बेबी बियर था जो अपनी मम्मी की बैक से पकड़े हुए था. तब जब एक सडन शॉट ने उसकी मम्मी को किल कर दिया. द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट्स मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज. अब ये जो लिटिल क्रीचर था ना, ये अपने ये प्रोस्ट्रेट पेरेंट्स जो थे उनके आसपास में क्या कर रहा था, घूम रहा था और रो रहा था. मेकिंग अ पिटीफुल साउंड, मतलब जब बच्चे रोते हैं ना वैसे ही, द सेपरेशन, द पेन ऑफ सेपरेशन, उसकी वजह से वो रो रहा था और वो इधर उधर पूरा घूम रहा था. एंड आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. It scooted into the sugarcane field. Following it with my companion, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to starch me with its long hooked claws. उन्होंने बोला I ran up to it to attempt a capture. मैं भाग के गया जस्ट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर एंड इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड. एंड वो जैसे ही मैं वहां पे गया, वो बच्चा वहां से, वो बेयर कब जो था वो दौड़ता हुआ गया एंड वो जाके उस शुगर केन फील्ड में छुप गया. फॉलोइंग इट, उसे फॉलो करते हुए विद माय कंपेनियन आई वेंट देयर एंड आई वाज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक. उसके नेक से पकड़ लिया मैंने उसको. एंड व्हाइल इट स्नैप्ड, उसने छुड़ाने की कोशिश की एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, और कोशिश की मुझे स्क्रैच करने की विद दोज लॉन्ग हुक्ड क्लॉज. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. But we put it in one of the gunny bags. हमने उसको एक गनी बैग में डाल दिया. गनी बैग जैसे बोरी होती है ना, उस तरह की चीज में. एंड हम उसे लेके आए. जब हम वापस बेंगलोर गए तो हम अपने साथ ले गए उसको, और मैंने वहां पे जाके उसको प्रेजेंट किया अपनी वाइफ को. शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश होगी. हमें आर्टिफिशियल टेडी बेयर्स मिलते हैं, वी आर सो हैप्पी व्हेन समबडी गिव्स अस अ टेडी. तो यहाँ पे तो जस्ट इमेजिन, ये तो एक रियल टेडी है. शी वॉज डिलाइटेड. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने एट वंस वो एक कलर्ड रिबन उसके अराउंड इट्स नेक उन्होंने डाल दिया. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, शी क्रिस्टाइन्ड इट ब्रूनो. पहले तो उन्होंने एक बहुत प्यारा सा रिबन डाला अराउंड इट्स नेक. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब, और वो कब डिस्कवर, जब उन्होंने ये डिस्कवर किया दैट दिस कब वाज अ बॉय, तो उन्होंने उसको एक नेम दिया एंड द नेम इज ब्रूनो. Bruno soon took to drinking milk from a bottle, and it was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking and everything else. And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredient, vegetable, fruits, nuts, meat, that is especially pork, curry and rice regardless of the condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweet, pudding, ice cream, etc., and so many more things. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. Now Bruno जो था, Bruno soon took to drinking milk from the bottle. वो बॉटल से मिल्क पीने लगा. And it was but a step further. एक स्टेप फर्दर गया. Within a few days उसने खाना भी शुरू किया. Eating and drinking everything else. Like हम बोल सकेंगे, yes, everything is the right word, because Bruno porridge भी खाता था जिसमें vegetables, fruits, nuts सब कुछ लेता था. He used to eat meat, especially उसे pork बहुत पसंद था. Curry, राइस, एंड रिगार्डलेस ऑफ ऑल द कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, सब चीजें खाना. ब्रेड्स, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग्स, आइसक्रीम्स, एक्सेट्रा, एंड मेनी मोर थिंग. एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and ये सब चीजें, and in fact anything liquid was given to Bruno. Bruno हर चीज पी लेता था, and it all went down with relish. और पीता तो था, and that too all the things with relish, that is वो सब चीजों को बहुत enjoy भी करता था.
यस, सो देखो, नाउ उन्होंने देखा कि द कब इज रेडी टू ईट एनीथिंग, ड्रिंक एनीथिंग, कुछ भी, एंड दैट टू एंजॉइंग, रेलिश मींस बहुत एंजॉय करके, फाइंडिंग एवरीथिंग सुपर टेस्टी. द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू अल्सेशियन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आर बंगलो. उन्होंने बोला ये जो बियर था ना, बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू अल्सेशियन डॉग्स, हमारे दो अल्सेशियन डॉग्स, एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स, टेनेंट्स के बच्चों के साथ में खेलता. लिविंग इन आर बंगलो, जो हमारे बंगलो में रहते थे. नाउ ही वॉज he was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. अब जब तक ये छोटा था ना, जब तक ये टाइम was very young, we left quite free, बहुत फ्री छोड़ रखा था. वो खेलता कूदता, इधर उधर अपना टाइम स्पेंड करता, किचन में भाग जाता, सोते समय came into our beds and sleep, हमारे बेड में घुस जाता, सो जाता. यंग छोटे बियर्स, दे आर डैम टू क्यूट, बस सुपर क्यूट होते हैं. वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई. आई पुट डाउन पॉइजन, दैट इज बेरियम कार्बोनेट्स, टू किल द रैट्स एंड माइस that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself to his stumps. To my wife, who called me, I guessed what had happened. Off I rushed to the car to the vet's residence. A case of poisoning, tame beer, barium carbonate, what to do? अब उन्होंने बोला एक दिन एक गड़बड़ हो गई. A kind of an accident befell. मैंने कुछ पॉइजन रखा था, that is barium carbonate, which is used to kill rats and mice. And I had also placed them to kill rat and mice, those who have got entered into my library. Now Bruno entered the library. अक्सर जाता था वो लाइब्रेरी. That day, Bruno took that poison and Bruno ate it, some of that poison, and suddenly paralysis set in his body, and it was to that extent कि Bruno अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. But he dragged himself on his stumps to my wife. But वो drag करता हुआ मेरी वाइफ तक गया. मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया, and I guessed what had happened, and off I rushed my car to the veterinary's doctor's residence, and I just asked him, a case of poisoning, tame beer है, barium carbonate खा लिया है, what to do sir, क्या करना है? Now out came his medical book and a feverish reference to the index began. अब उन्होंने अपना मेडिकल बुक निकाला, एक फीवरिश सा रेफरेंस आया टू द इंडेक्स, एंड इट बिगेन लाइक, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट. क्या पॉइजन बताइए आपने, कौन सी खा ली उसने? बेरियम कार्बोनेट. नाउ ही इज स्टार्टिंग टू फाइंड आउट. बेरियम कार्बोनेट को जैसे हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं ना अल्फाबेटिकली, वैसे उन्होंने ढूंढना शुरू किया. उन्होंने बोला यस, BARIUM, बेरियम, सॉल्ट, क्या था? बेरियम कार्बोनेट. उन्होंने बोला सिम्टम्स, पैरालिसिस हुआ होगा. यस. ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ डैश डैश डैश. उन्होंने बोला इसका ट्रीटमेंट क्या है? दैट वी हैव टू गिव हिम द इंजेक्शन ऑफ जो भी उनका सॉल्ट था. जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माय सिरिंज एंड द मेडिसिन. उन्होंने बोला जस्ट अ मिनट सर, अभी चलते हैं, मैं अपना सिरिंज और मेडिसिन ले आऊं. अ डैश बैक टू द कार. ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing and heavy flanks and gaping mouth. Now फटाफट वो गाड़ी की तरफ गए, गाड़ी भगाते हुए घर ले गए. जब वो गए तो उन्होंने देखा ब्रूनो अभी भी was floundering, that is was struggling to move about on his stumps, but clearly weakening rapidly. but बहुत ही rapidly weak होती जा रही थी उसकी बॉडी. कुछ vomiting था, heavy breathing थी, heaving flanks थे, and a gaping mouth और खुला मुंह. hold him everybody, in goes the hypodermic. उन्होंने बोला पकड़ो इसको, सब पकड़ो, बिकॉज अब आप एक बियर की बॉडी में इंजेक्शन लगा रहे हो, तो एज द निडल इज गोइंग टू गेट इनटू द बॉडी, तो बहुत हंगामा होगा. अ लॉन्ग निडल यूज्ड टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन. नाउ एक लॉन्ग निडल को यूज किया गया टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन. नाउ ब्रूनो स्क्विल्स, ब्रूनो चिल्लाया. अब जैसे ही वो चिल्लाया, उसके अंदर क्या मेडिसिन दी उस इंजेक्शन के थ्रू? 10 cc ऑफ एंटीडोट enters his system without a drop being wasted. एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं हुआ. पूरा 10 cc जो मेडिसिन था एंटीडोट, वो उसकी बॉडी के अंदर गया. 10 minutes later conditions unchanged. 10 मिनट बाद भी कंडीशन नहीं बदली.
Another 10 cc injected. Another 10 cc was injected. 10 minutes later, breathing less sterous. अब 10 मिनट बाद ब्रीदिंग थोड़ी सी लेस स्टेरियस हो गई. स्टेरियस कहने का मतलब नॉइजी ब्रीदिंग. ठीक है, जैसे कोई खर खर करके ना स्नॉटिंग की साउंड्स होती है वैसे. 10 मिनट बाद थोड़ा सा कम हुआ. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड अ लेग लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड अप. ब्रूनो 10 मिनट बाद हल्के हल्के अपने हाथ पांव हिला पा रहा था, हालांकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. 30 minutes later, Bruno did what? Bruno खड़े हुए. He gets up and had a great feed. और अच्छे से उसने खाना खा. He looks at us disdainfully. And उसने हमें बहुत निराशा के साथ हमारी तरफ देखा. As much as to stay. जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. ब्रूनो आराम से खाना खा रहा है और हमें देख रहा है मानो ये कहना चाह रहा है कि मेरे जैसे इतने बड़े भालू के लिए ये बेरियम कार्बोनेट चीज ही क्या है, देखो ब्रूनो तो वापस से खा रहा है. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. अनदर टाइम ही फाउंड. अब ब्रूनो बहुत शैतान था, वाज वेरी नॉटी. एक एक्सीडेंट तो उसके साथ ये हुआ दैट ही एट अप द बेरियम कार्बोनेट. अनदर एक और एपिसोड हुआ ब्रूनो के साथ में. एंड व्हाट वाज दैट, यू नो, अनदर टाइम ही फाउंड नियरली अ गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल. एक ओल्ड इंजन ऑयल का एक पूरा गैलन मिल गया उन्हें, which I had drained from the sump of the stewed baker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. Another time उन्होंने देखा he found nearly 1 gallon of old engine oil जो उन्होंने ड्रेन किया था from the sump of the stewed breaker एंड उसे उन्होंने रखा था अपने पास में एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स. जो टर्माइट्स होते हैं ना, दीमक वगैरह लग जाती है, जस्ट उनके अगेंस्ट. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट. ही जस्ट ड्रैंक द लॉट. वो खूब सारा जो ओल्ड इंजन ऑयल था उसमें से खूब सारा पी गया. बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर. लेकिन उसके कुछ बहुत ज्यादा इल इफेक्ट्स ब्रूनो पे नहीं आए, जबकि उसने पी तो लिया बट इतने ज्यादा इफेक्ट्स उस पे नहीं आए. बट स्टिल सी नाउ the months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. Above all, he loved my wife and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. And the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble and give him a stick and say, Baba, hold gun. And he pointed the stick. You ask him, Baba, where's the baby? Now 3 months rolled on, 3 महीने बीत गए, and Bruno had grown many times the size he was. Bruno grown many times the size he was when he came, and he had equaled the Alsatians in height. वो हाइट में Alsatians के बराबर पहुंच गए, and had even outgrown them, और उनको भी outgrow कर दिया, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us above all. He loved my wife and she loved him too. वो क्या हुआ, इतना बड़ा तो हो गया, but you know what? The bond between my wife and Bruno was getting strong day by day. He was very fond of us all. वो हमें बहुत प्यार करने लगा. Above all, वो मेरी वाइफ को सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरी वाइफ भी उसे सबसे ज्यादा करती थी. She had changed his name from Bruno to Baba. उन्होंने अपना नाम ब्रूनो से बाबा चेंज कर लिया. ना हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, and he could do a few tricks too. She had changed his name from Bruno to Baba, and a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. अब आपने देखा है that when we come to the Hindustani name signification, तो हम देखते हैं baby is always for a small girl and Baba is always given a name to a small boy. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इस चीज को देखा ना, वाइफ चेंज्ड द नेम
फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उन्होंने अपने उसको बेयर को उसको ब्रूनो नहीं कह के वो बाबा बुलाने लगी। बाबा का मतलब होता है स्मॉल बॉय, बिकॉज अभी वो बेयर कब जो था ना उस ग्रोन अप इनटू अ स्मॉल बॉय जैसा हो गया था वो। एंड वो कुछ ट्रिक्स भी करने लगा था एट द कमांड बाबा रेसल, वो बाबा रेसल करके दिखाता था। बाबा बॉक्स, वो बॉक्स करता था, जब उसको ऐसा कहा जाता था ही विग्रेसली टैकल्ड एनीवन, किसी को भी टैकल कर लेता था। हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, जो भी परेशान करने आता उसको वो कर देता। ही स्टार्टेड गिविंग हिम अ रफ हैंड एंड द पर्सन शुड गो टम्बलिंग। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, अगर आप उसको एक स्टिक दे दो और बोल दो बाबा होल्ड गन, तो वो स्टिक को उस तरीके से पॉइंट कर लेता था एट यू लाइक ही इज होल्डिंग अ गन एट यू। आस्क हिम बाबा वेयर इज द बेबी, उसको पूछो बाबा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस अ क्रैडल, तो वो अपने हाथ से क्या करता था, एक क्रैडल बना लेता था, दैट इज अपने हाथ से एक झूला बनाता था और उसको ऐसे शेक मूव करने लगता था। इतना अफेक्शनेटली अ स्टंप ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, एक लकड़ी का एक टुकड़ा था, उसको वो ऐसे बना लेता था जैसे कि वो झूला हो, इस तरह से हाथ में जैसे बेबीज को क्रैडल करते हैं वैसे करते थे। वो स्टंप ऑफ वुड जिसे उन्होंने अपने कहाँ पे रखा था, बहुत ही कंसील करके छुपा के अपने स्ट्रॉ बेड में रख रखा था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स पुअर चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, वो जो टेनेंट्स जो उनके रेंट पे जो पीपल रहते थे उनके जो बच्चे थे, दे वर वेरी स्मॉल। अब छोटे बच्चे, अभी क्या होता है, आप सब किसी के घर जाते हो, इफ देयर इज अ डॉग, जब तक डॉग छोटा है यू फील सो हैप्पी एंड सो फ्री कि आपको उस डॉग से डर नहीं लगता है। जब वो डॉग ग्रोन अप हो जाता है, जब वो डॉग थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, आप ये सोचने लगते हो कि कहीं ये डॉग हमें खा ना जाए, बिकॉज वी आर नॉट नोन टू दैट डॉग। तो यही चीज हुई, जब तक वो बेयर छोटा था तब तक तो उसे सब खेल रहे थे, जैसे टेडी बेयर सबको पसंद है, वो डॉग बेयर भी सबको अच्छा लग रहा था। बट जब वो बड़ा हुआ, क्योंकि वो जिसको नहीं जानता, हमें नहीं मालूम वो कैसे रिएक्ट करेगा, है तो अल्टीमेटली वाइल्ड एनिमल ना। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे थे, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम। पुअर ब्रूनो और बाबा, इन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या किया जाता था, चेन रखा जाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम उसे बांध के रखा जाता था। ठीक है,